A very good morning to all of you. Today we are going to start our new topic, which is personality. Personality is one of the very important topics of all. Personality represents those structural and dynamic properties of individuals as they reflect themselves in characteristic responses to stimuli. Personality is one of the most familiar and at the same time one of the most difficult concepts in psychology. साइकोलॉजी में पर्सनालिटी क्या है? एक फैमिलियर और एट द सेम टाइम उसी टाइम में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है. All of us use the term in our everyday conversation, but most of us would feel hard to provide an accurate statement of its meaning. Personality includes all those characteristics that are important in the individual's personal adjustment and in his maintenance of self-respect. See, as we all know that in our everyday's life, मतलब हम अपने everyday के डेली के लाइफ में जो है पर्सनालिटी वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. किसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसकी पर्सनालिटी वैसी है, बट इसका एक क्लियर मीनिंग हर कोई नहीं दे पाता या समझ पाता, या एक स्टेटमेंट हम इसका नहीं दे पाते हैं क्लियरली. सो पर्सनालिटी क्या होती है? एक ओवरऑल एडजस्टमेंट होती है, या आप कह सकते हो एक इंडिविजुअल का पर्सनल एडजस्टमेंट होता है जो वो करता है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करता है, या आप कह सकते हो उसी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए वो एडजस्टमेंट करता है. एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनालिटी मस्ट टेक इनटू अकाउंट अपीयरेंस, एबिलिटीज, मोटिव्स, इमोशनल रिएक्टिविटी एंड द residues from experiences that have shaped the personal as we find him. According to Allport, personality is what a man is and does. It is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. यानी कि उसके environment के साथ जो उसका adjustment है उस individual का, that is called personality. साइकोफिजिकल सिस्टम मीन हैबिट्स, एटीट्यूड, डिस्पोजिशंस एक्सेट्रा. आपके क्या हैबिट हैं, कैसा एटीट्यूड है आपके खुद के लिए, दूसरों के लिए, आपके एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्या क्या आपके हैबिट्स हैं, डिस्पोजिशंस हैं, विच आर नीदर एक्सक्लूसिवली मेंटल और एक्सक्लूसिवली न्यूरल. द ऑर्गेनाइजेशन entails the operation of both the body and the mind inextricably fused into a personality unity. Personality indicates the manner in which an individual adjusts to his physical and social environment. Here we are talking about the both environment, physical and social. So personality एक बहुत important क्या है? एलिमेंट है, एक बहुत important trait है एक individual का. Let's have a look on the meaning and definitions of personality. The word personality has been derived from the Latin word persona, which means the mask. Latin word के persona से बना है जिसका meaning होता है mask. There are various definitions of personality. Some popular and important definitions are given ahead. G.W. Allport. Personality is a dynamic organization within the individual of those psychological systems that determine his unique adjustment to his environment. According to R.S. Woodworth, personality may be defined as the most characteristic integration of an individual's structure, modes of behavior, interests, attitudes, capacities, abilities, and aptitudes. According to R.S. Woodworth, personality can be defined as the total quality of an individual's behavior as it is revealed in his habits of thought and expression, his attitude and interest, his manners of acting and his personal philosophy of life. यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं in this para, in these lines, कि personality में आपका सब कुछ आ जाता है. आपका behavior, आपके attitude, capacity, ability, aptitude, आपका manner, interest, expression, जो कि आपका जो thought है, जो कि आपके हैबिट्स हैं, थॉट और एक्सप्रेशन के थ्रू बाहर आते हैं. सो इट इज़ अबाउट एवरीथिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी? सेल्फ कॉन्शियसनेस. दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी. क्या? सेल्फ कॉन्शियसनेस.
द इन्फेंट डज नॉट हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, इन्फेंट के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता. द मोमेंट द चाइल्ड स्टार्ट सोशल इंटरेक्शन इज पर्सनैलिटी डेवलप स्टार्ट अज्यूमिंग फॉर्म. जब बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है, सोशल इंटरेक्शन करता है, तो उसकी क्या होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शुरू होता है और वो एक अज्यूमिंग फॉर्म, मतलब एक फॉर्म में आ जाता है, अज्यूम करने लगता है चीज़ों को. जब वो पैदा होता है या जब वो इन्फेंट रहता है तब तक उसके अंदर किसी तरीके का सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता. सो दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी. नंबर 2 इज़ सोशल अडेप्टेशन. व्हाट इज़ सोशल अडेप्टेशन? Personality is meaningless. If there is no society, the child secures his adjustment in the society and thus develop his personality. Personality क्या होता है? मीनिंगलेस होता है. अगर सोसाइटी नहीं है तो एडजस्टमेंट भी किस तरीके से आप एडजस्ट करोगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा. यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस भी तभी आती है जब बच्चा सोशली इंटरेक्शन करता है. Number 3, definite aim. The third characteristic of personality is its definite aim. If the child is directed towards a definite aim, only then his personality would develop. आपका एक definite aim होना चाहिए. जब आपका एक aim होगा तभी आपकी personality क्या होगी, डेवलप होगी और डायरेक्टली उस गोल के तरफ, उस एम के तरफ डेवलप होगी. फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी इज साउंड फिजिक एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड. उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ. द चाइल्ड हैज़ इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हु इज़ ऑफ गुड फिजिक एंड प्रॉपर मेंटल हेल्थ. यानी कि आपका अच्छा फिजिक होगा तो आपकी एक पर्सनालिटी का एक क्वालिटी है, अच्छी पर्सनालिटी कहलाएगी. एक प्रॉपर आपका मेंटल हेल्थ होना चाहिए, विच मीन्स आपका जो मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. इंटीग्रेशन. पर्सनैलिटी इज़ नॉट अ सेपरेट यूनिट. एक सेपरेट यूनिट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है. इट इज़ अ मिक्सचर, इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन. किन किन चीज़ों का? इट इज़ एन इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. यानी कि इसमें ह्यूमन बीइंग के फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल ये सारे ट्रेट्स आते हैं. सो इट इज़ अ इंटीग्रेशन. कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूटी. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस, जो कि चलता रहता है. Personality is a moving organization of human characteristics which are always reformed and changed. As a consequence, there is a persistent development of personality. Number 7, satisfaction and high desire. Development of personality depends upon satisfaction and aspiration level of human being. कहीं ना कहीं personality development क्या है? आपके satisfaction पे depend करता है. So, it is all about your satisfaction and high desire. These all are the important characteristics of personality. Kinds, there are different kinds of personality as below. Number 1 is, your A is Hippocrates. According to Hippocrates, personality is the following type. Hippocrates के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी के कई टाइप्स हैं. ग्लूमी, एंग्री, ऑप्टिमिस्टिक. ग्लूमी क्या होते हैं? ग्लूमी ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा सैड होते हैं, वरिड होते हैं. दे हैविंग एंग्जाइटीज़, उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी यानी चिंता होती है, फिक्र होती है, हमेशा परेशान से रहते हैं. एंग्री कौन से होते हैं? एंग्री पर्सनालिटी, दे आर वेरी सून डिस्टर्ब इवन ऑन ट्रिवियल मैटर्स. हमेशा उनको गुस्सा आता है, एंग्री हो जाते हैं सिचुएशंस पे, कंडीशंस पे. एक अलग सा उनका एक अलग एटमॉस्फेयर नहीं आप कह सकते, एक अलग जोन में चले जाते हैं. ऑप्टिमिस्टिक कौन होते हैं? दे आर ऑलवेज होपफुल, थिंकिंग ऑफ प्रोग्रेस एंड हैप्पीली परफॉर्मिंग देयर एवरी डे यूनिट. बहुत ही पॉजिटिव टाइप के लोग होते हैं. दे आर कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक. हमेशा होपफुल रहते हैं, प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं और सारे अपना डेली एवरीडे के रूटीन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट आपके बी में आएगा, क्रेशमर ने क्लासिफिकेशन किया, उनके अकॉर्डिंग क्या है? साइकोलॉइड और सिजॉइड. साइकोलॉइड, दीज पीपल आर सोशल, गुड नेचर्ड एंड इम्पल्सिव इन नेचर. ये अच्छे लोग होते हैं, सोशल होते हैं. और सिजॉइड, दीज पीपल आर लेस टॉकेटिव, क्वाइट सीरियस एंड नॉन सोशल इन नेचर. ये बहुत ही लेस टॉकेटिव, कम बात करने वाले होते हैं, क्वाइट होते हैं, शांत होते हैं, सीरियस होते हैं. एंड दे आर नॉन सोशल, मतलब ये सोशल नहीं होते हैं नेचर में. Here you can see the classification of Kretschmer, Sheldon's. They classify personality like this. अलग अलग टाइप का इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है. पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक, डाइप्लास्टिक. इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि जो पिकनिक टाइप में आते हैं वो शॉर्ट, फैट और राउंड होते हैं.
थेनिक जो होते हैं वो टॉल थिन स्किनी होते हैं, एथलेटिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, मोर वेट इनके कंपैरेटिवली ज़्यादा वेट होता है, इनका गुड फिजिक होता है, एंड डायस्प्लास्टिक जो होते हैं वो नॉन वेल स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो यहाँ पे इन्होंने 1 से सेकंड को, सेकंड से थर्ड, फोर्थ ऐसे मतलब कंपैरिजन किया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपैरिजन दे क्लासीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। उसी तरीके से शेल्डन ने किया है। शेल्डन कंक्लूडेड दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी बिल्ड ईच एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर टेम्परामेंटल एंड अदर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक। शेल्डन ने बताया है एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। इन्होंने बताया जो एंडोमॉर्फिक होते हैं उनका फिजिक कैसा होता है, सॉफ्ट एंड राउंड होता है, इनका टेम्परामेंट होता है कंफर्ट लविंग होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, प्लेजर सीकिंग और सोशलाइजिंग। मेसोफार्मिक कैसे होते हैं, मस्कुलर एथलेटिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं काफ़ी, और इनका टेम्परामेंट कैसा होता है, बहुत एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लेस रिलीजियस विच मीन्स रिलीजियस कम होते हैं, मोर अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, अग्रेसिव होते हैं काफ़ी। और एक्टोफॉर्मिक कैसे होते हैं, स्लेंडर, फ्रजाइल, सेंसिटिव होते हैं, डेलिकेट, इंटेलेक्चुअल, ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, विड्रॉइंग हैं। सो दीज आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर जुंग ने क्लासिफिकेशन किया है, जुंग्स क्लासिफिकेशन, when the orientation to the object and to objective fact is so predominant that the most frequent and essential decisions and actions are determined not by subjective values but by objective relation. One speaks of an extroverted attitude when this is habit based. One speaks of an extroverted type. If a man so think, feel and act in a world so lives as to correspond directly with the objective condition and their claims whether in a good sense or bad, he is said to be extrovert. 2 टाइप होते हैं आपका, एक्सट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि जो बहुत कम बातचीत करते हैं, कम बोलते हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, दे आर, उनका जो इंटरेक्शन होता है लेस इंटरेक्शन होता है, दे आर नॉट वेरी सोशल। और एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी होती है बोलने वाली, इंटरेक्ट करने वाली, वो ज़्यादा एक्सप्रेस ज़्यादा करते हैं, इंटरेक्शन ज़्यादा करते हैं, तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होते हैं। देयर आर सम फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस आवर पर्सनालिटी लाइक हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि जो आपको आपके वंश से मिलती हैं क्वालिटीज़, वो आपकी हेरिडिटी में आती हैं। इट प्रोवाइड ऑल द पॉजिटिव और नेगेटिव जेनेटिक असेट थ्रू क्रोमोसोमल जीन एक्सचेंजेस, जो हमारे जीन में होता है, चाहे वो पॉजिटिव हमको मिले अपने घर से, फैमिली से, अपने वंशज जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी से, चाहे नेगेटिव हो। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या होता है, कंटिन्यूसली इसका फ्लो होता है, मतलब ये अपने आप आपके जनरेशन टू जनरेशन में जाता रहेगा। फिर वो चाहे जैसा पर्सनालिटी का ट्रेट हो, फिर वो चाहे जैसी चीज़ें हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। इट फॉर्म्स द बेसिक यूनिट ऑफ द चाइल्ड आफ्टर टेकिंग बर्थ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। देयर आर सम बायोलॉजिकल कंडीशन और सिक्रेशंस विच इन्फ्लुएंस द चाइल्ड सिंस बर्थ एंड शेप द ह्यूमन पर्सनालिटी। जो बर्थ से उसको क्या करती है, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके पर्सनालिटी को शेप करती है। वी कैन से दीज ग्लैंड्स एज द की ऑफ वंस पर्सनालिटी बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ ग्लैंडियर सिक्रेशन वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस पर्सनालिटीज दैट हाउ दे डील विद देयर डे टू डे एक्टिविटी। इन्हीं के बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं, इन्हीं ग्लैंड्स के बेसिस पे। बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। आवर बॉडी बिल्डअप ऑल्सो प्लेज विटल रोल। बॉडी बिल्डअप बहुत हमारे रोल प्ले करता है, किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी को डिटर्मिन करने में। दीज आर ample of scientific and pseudo scientific theories available in this field. It is a known fact that the glands also determine our body build up by hormones. So these are the very important factors which somewhere related to our personality. आपके glands हैं, आपके hormones हैं, gene हैं,